Good morning, students. Today we're going to discuss exercise question of chapter second, which is acids, bases, and salts. Let us start from the first question. A solution turned red litmus paper blue, its pH is likely to be simple. If red litmus paper turns blue, that means it is base. It is base, and we know very well the pH scale, है ना? The substance which have pH less than 7, it is called acid. The substance which have pH more than 7 is called base. अब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाया मतलब वो बेस है, उसका pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए. तो फ्रॉम ऑप्शन फाइंड आउट विच number is more than 7. It is 10. So our answer will be 10. A solution reacts with crushed egg shell to a gas that turns lime water milky. The solution contain. Simple. Whenever anything react to form a gas, that means it must be acid. So here hydrochloric acid. No doubt base also can form a gas of hydrogen gas. But check it out. Here sodium chloride is neutral, is neither acid nor base. Hydrochloric is acid, neutral, neutral. So only we are having acid which can produce a gas. So answer is hydrochloric acid. 10 milliliter of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be dash. Simple. Here we'll write some ratio NaOH HCl. Just a minute. NaOH HCl. Check it out. 10 ml NaOH. So write 10 below NaOH. Complete neutralized by 8 ml of given HCl. So 8 below HCl. If we take 20 ml of NaOH, then the amount of HCl amount required will be dash. Simple, we'll do cross. 20 will multiply with 8 and this 10 will move down. 0 cancels. 2 8 the 16 ml. So how much hydrochloric acid will required? 16 ml, which is our answer. Clear? Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? Indigestion, that means what? Acidity. है ना? If you are suffering from acidity, what you going to take? ENO. What is ENO? Antacids. एंटासिड हम उसको बोलते हैं जो देखो पीछे एसिड आता है और एंट का मतलब रोकना, एसिड का मतलब एसिडिटी. जो एसिड को रोकते हैं दैट आर कॉल्ड एंटासिड्स. एंटीबायोटिक तो गोलियां होती है. एनजेसिक ये अलग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है तब ये लिया जाता है. एंटीसेप्टिक आपको मालूम है जब कोई कट जाता है छिल जाता है तब लगाई जाती है. तो मतलब एसिडिटी से रिलीफ के लिए हम लगाते हैं एंटासिड्स. जैसे इनो है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, ये सारे एंटासिड्स बोले जाते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. राइट वर्ड इक्वेशन दैट बैलेंस इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस देन. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स H2SO4 react with zinc. Remember one thing, whenever acid react with metal it always form dihydrogen gas. कुछ चीज़ें तो हमें मालूम होनी चाहिए. देखो इतनी चीज़ें माइंड में रखने का कि जब भी मेटल कोई एसिड के साथ या तो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज डाइहाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट होता है. ठीक है. अब देखो यहाँ सिंपल है. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, सल्फर 2-, सल्फेट 2-, जिंक 2+. पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnSO4 Zn2+. से वेन एवर यू राइट एनी कंपाउंड डोंट फॉरगेट टू राइट चार्जेस. चार्जेस देख लेने का. बैलेंस है, हाँ 2 बैलेंस है और ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा. लेट अस बैलेंस 1 Zn 1 Zn SO4 1 SO4 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2. डन. सो हियर द इक्वेशन इज ओवर. Second chemical reaction B, dilute sulfuric acid. So dilute hydrochloric acid, again H2SO4
react with magnesium ribbon, same. Again acid react with metal to form dihydrogen, वो हाइड्रोजन गैस बनेगा ही. हाइड्रोजन 1 प्लस, सल्फेट 2 माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस. पॉजिटिव रिएक्ट विद नेगेटिव, so Mg 2 प्लस, सल्फेट 2 minus, charges are balanced, hydrogen left, they are balanced, magnesium 1 sulfate 2 hydrogen, that's it. Easiest reaction it is, है ना. dilute sulfuric acid H2SO4 react with aluminum, again metal, so obviously it will form dihydrogen gas. हाइड्रोजन 1 प्लस, सल्फेट के 2 माइनस, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है 13, वैलेंसी 3 प्लस, पॉजिटिव रिएक्ट विद नेगेटिव, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सल्फेट 2 माइनस. ठीक है, चार्जेस आर नॉट बैलेंस, तो क्रॉस करना पड़ेगा. 2 जाएगा एल्यूमिनियम की तरफ, 3 जाएगा SO4 की तरफ, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा Al2SO4 थ्राइस, समझे. प्लस ये बच गया हाइड्रोजन. लेट अस बैलेंस, 2 एल्यूमिनियम, हियर 1 एल्यूमिनियम, तो व्हाट विल राइट 2 बिफोर Al. हाउ मेनी SO4 3, हियर हाउ मेनी SO4 1, ये पूरा SO4 1 ही कंसिडर किया जाएगा. 3 बनाने के लिए मुझे आगे 3 लिखना पड़ेगा. अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो ये 2 हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए मुझे आगे लिखना पड़ेगा 3. क्लियर, गो थ्रू इट. नेक्स्ट डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, नहीं हमने सल्फ्यूरिक एसिड सोच के कर डाला. कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क तो पड़ता है वैसे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा. देखो बी में फिर से करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, हाइड्रोजन 1 प्लस, क्लोरीन 1, फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए बोला कि कोई भी एसिड मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है. बाकी लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था. फिर से चलो कोई बात नहीं. मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम 2 प्लस, क्लोरीन 1 माइनस. ये चार्जेस तो आपको आने चाहिए. आपको 1 से लेकर 17 तक के ग्रुप के एलिमेंट के नियम आने चाहिए, जो मैंने सेंटेंस बना के आपको सिखाए थे. अब मैं क्रॉस करूँगा तो 2 जाएगा क्लोरीन की तरफ और 1 जाएगा Mg की तरफ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा MgCl2 और हाइड्रोजन फ्री होगा. अब हाइड्रोजन फ्री होगा, सिर्फ H नहीं लिखा जाता, वो गैस है, H2 लिखा जाता है. क्लियर. नाउ लेट अस बैलेंस. हाउ मेनी मैग्नीशियम 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड. क्लोरीन 2, सो टू मेक दिस 1 क्लोरीन 2 मुझे HCl के आगे 2 लिखना पड़ेगा. अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ पर भी 2 है, हो गया बैलेंस. क्लियर. चलो अब लास्ट वाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन HCl रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग, अगेन मेटल, सो इट मस्ट प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस, हो तो प्रोड्यूस होगा ही. ठीक है. D is dilute hydrochloric acid, so HCl react with iron, that means Fe. So again acid react with metal to form hydrogen gas, so hydrogen gas form होने वाला है. हाइड्रोजन 1 प्लस, क्लोरीन 1 माइनस एंड Fe 2 प्लस. लिसन, आयरन हैव 2 वैलेंसी, 2 प्लस एंड 3 प्लस, तो इसके लिए रिएक्शन तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें 2 प्लस वैलेंसी हो, किसमें 3 प्लस. मैक्सिमम तो 2 प्लस ही होती है वैलेंसी. देखो आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन की 2 प्लस, क्लोरीन 1 माइनस, बैलेंस नहीं, मैं क्रॉस करूँगा तो FeCl2 बनेगा और बचा हाइड्रोजन, वो फ्री होगा. बैलेंस Fe1 क्लोरीन 2, तो 2 लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पहले ना. हाइड्रोजन बिकम 2, हाइड्रोजन 2, सो बैलेंस्ड. ओके. Compound such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity or to study conductivity or conduction of electricity by aqueous solution of acid and bases. Look, simple. यहाँ ऐसा पूछा गया है कि अल्कोहल क्या मतलब,
CH3CH2OH बराबर है, ये अल्कोहल इथेनॉल जिसको कहते हैं, और ग्लूकोज 6 12 छक्के C6H12O6, दोनों में हाइड्रोजन है कि नहीं, फिर भी इनको हम एसिड नहीं बोल सकते, एसिड नहीं बोल सकते। तो सिंपल लॉजिक मैंने आपको एसिड का बताया था कि किसी भी कंपाउंड को एसिड कब बोल सकते हैं, उसको एसिड तब बोल सकते हैं कि पहली उसकी कंडीशन वो वाटर के कांटेक्ट में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन। तो इथेनॉल है वो वाटर के कांटेक्ट में तो आ जाएगा, हम जैसे वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे तो, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है, इसका आयोनाइजेशन होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता नहीं है, समझे। इसकी वजह से इथेनॉल यानी अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद हम उसको एसिड नहीं बोल सकते, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। वैसे ही देखो, ये ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन है, फिर भी हम उसको एसिड नहीं बोलेंगे। क्यों? वही प्रॉब्लम है, ग्लूकोज के अंदर हम वाटर तो डाल देंगे, लेकिन वाटर डालने के बाद ग्लूकोज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता नहीं है। एसिड उसी को बोला जाएगा जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब ये हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छा सा वीडियो है। देखो, हम डिफरेंट एसिड और बेस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करेंगे। देखो, याद रखना, सॉल्ट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। Today we're going to learn about solutions and how they... देखो, ये सारे के हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करेंगे। जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो आयन प्रोड्यूस करता है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। देखो, ये टैप वाटर है, टैप वाटर। अब आप सोचोगे सर टैप वाटर के अंदर कौन से आयन होते हैं? टैप वाटर, हम जो पानी पीते हैं, जो टैप से आता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट आयन के फॉर्म में होते हैं और वो क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। देखो, तो मतलब टैप वाटर भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चेक करें। टैप वाटर सॉल्ट की, ये डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आयन ही नहीं है। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन चाहिए, इसके अंदर तो कोई आयन ही नहीं है, तो मतलब डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब आगे देखें। सोडियम क्लोराइड, इसको भी देखो, सोडियम क्लोराइड है, वो भी आयन प्रोड्यूस कर। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस, ये भी आयन प्रोड्यूस करता है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। चेक करो। शुगर, देखो, शुगर की बात आई, शुगर के अंदर ग्लूकोज होता है, लेकिन ये शुगर के अंदर हमने वाटर डाला है, लेकिन वो आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाता है? आयन। तो इसलिए हम उसको आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो हम उसको, वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन उसको एसिड क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देखो, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर पाता है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ये विनेगर, ये एसिड है, ये भी बल्ब देखो ग्लो करता है क्योंकि एसिड है। ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, बहुत कम प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या लिखा है, मेरे को प्रॉपर्ली रीड नहीं हो पा रहा है। ओके, BaSO4। अब देखो, ये आयन प्रोड्यूस अगर करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, देखो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। समझ गए? तो एक बात याद रखने की, यहां से कंक्लूजन अगर हम ले तो
तो वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जो आयन प्रोड्यूस करता है, बराबर है। अगर प्रोड्यूस होने वाला आयन हाइड्रोजन आयन है तो उसको एसिड बोला जाएगा। अगर प्रोड्यूस होने वाला आयन हाइड्रोक्साइड है तो उसको बेस बोला जाएगा। चलो पूरा रीड कर लेते हैं। मटेरियल्स इजीली यू कैन राइट, समझाने की जरूरत नहीं है। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 nails on a cork and place the cork at 100 ml water. Connect the nails to the 2 terminal of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Now pour some dilute hydrochloric acid in the beaker and switch on the current. तो जैसे हम करें स्विच ऑन करेंगे करंट तो तुरंत बल्ब ग्लो होगा। तो ये बल्ब ग्लो हुआ, ये क्या बताता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। अब सिंपल लॉजिक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसके अंदर आयन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, मतलब कौन सा आयन प्रोड्यूस हुआ होगा, हाइड्रोजन। उसका मतलब वो एसिड है, वो शो करता है। सेम सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो अगेन द बल्ब विल ग्लो। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ने भी आयन प्रोड्यूस किया होना चाहिए। कौन सा किया उसने, हाइड्रोजन आयन, तो मतलब वो भी एसिड हुआ। बट व्हेन वी कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल, बल्ब डज नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो नहीं होता है, तो मतलब ग्लूकोज ने भी कोई आयन फॉर्म नहीं किया, अल्कोहल ने भी कोई आयन फॉर्म नहीं किया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आयरन इज नेसेसरी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मेटल हमें चाहिए। अल्कोहल एंड ग्लूकोज डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अल्कोहल और ग्लूकोज ने बल्ब ग्लो नहीं किया, मतलब उसने आयन फॉर्म नहीं किया। Therefore, even though alcohol and glucose contain hydrogen ion but are not categorized as acid. समझे, एसिड होने के लिए हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड होते तो बल्ब ग्लो होता। बल्ब ग्लो होता तो हम मान सकते थे कि उसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हुआ, उसका मतलब इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब वो एसिड नहीं है। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? देखो एक ही बात सिंपल माइंड में रखो कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब आयन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, आयन। अब फॉर्म होने वाला आयन हाइड्रोजन आयन है तो उसको एसिड बोला जाएगा। फॉर्म होने वाला आयन हाइड्रोक्साइड है तो उसको बेस बोला जाएगा। दोनों टाइप के आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या फॉर्म होना चाहिए, आयन। अब सिंपल है, डिस्टिल वाटर अभी हमने देखा था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है, मतलब वो आयन फॉर्म करता नहीं है। लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उसका मतलब रेन वाटर आयन फॉर्म करता है। तो रेन वाटर में आयन कहाँ से आए, तो जब भी क्लाउड में से जब पानी गिरता है तो एटमॉस्फेयर के जो सॉल्ट होते हैं उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। डिस्टिल वाटर जो भी है वो प्योर वाटर है, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। रेन वाटर के साथ जो एयर में जो सॉल्ट होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ये सॉल्ट आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रेन वाटर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, क्योंकि एयर के अंदर जो सॉल्ट होते हैं ना वो कुछ एसिडिक होते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर, इट डज नॉट कंटेन आयन, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एसिड होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए। पहली कंडीशन वाटर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन आयन फॉर्म होना चाहिए। और हाइड्रोजन आयन कब फॉर्म होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंट में। अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म होगा नहीं। तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ, ठीक है, अब उसको मैं लिटमस पेपर टेस्ट करूँ तो ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर है ही नहीं, तो हाइड्रोजन आयन बनेगा ही नहीं। हाइड्रोजन आयन जब बनता है तभी उसको एसिड बोला जाता है और तभी वो ब्लू को रेड बनाता है।
और हाइड्रोजन आयन फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो उसका मतलब फॉर एसिडिक बिहेवियर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, और हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देयरफॉर इट शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicators show pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acid and alkaline, weakly whatever. Let me draw the pH scale. ये 7, ठीक है, लेस देन 7 एसिड, मोर देन 7 बेस। चलो हम शो करते हैं। पीएच जिसकी 4 है वो ए है, तो मैं लिख दूं ओके। अब 4 जो पीएच वाला है वो कंपाउंड ए है, बराबर है। फिर पीएच 1 आई और अल्फाबेट आया बी, तो 1 वाला कंपाउंड बी है। फिर आया 11 और कंपाउंड आया सी, तो 11 में है सी। फिर 7 में आया डी, 7 डी। 9 में ई, ठीक है, ये रहा 9 और ये ई, ठीक है। चलो चेक करते हैं कौन सा न्यूट्रल है। ये 5 हमने रिप्रेजेंट कर दी। कौन सा न्यूट्रल किसको कहते हैं, जिसकी पीएच 7 होती है। तो मतलब पीएच 7 किसकी है, डी की, तो डी होगा न्यूट्रल। कैसा होगा, न्यूट्रल, डी न्यूट्रल हुआ। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस। स्ट्रॉन्गली सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा, सबसे ज़्यादा, सीधी बात है, सबसे ज़्यादा बेसिक वही होगा जिसकी पीएच सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी पीएच सबसे ज़्यादा है, देखो C11 है, तो C होगा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। अब स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, देखो जैसे जिसकी पीएच सबसे ज़्यादा वो बेसिक, जिसकी पीएच सबसे कम वो सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे कम पीएच वाला कौन है, बी, तो बी होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक। वीकली एसिडिक, वीकली का मतलब, एसिडिक का मतलब क्या, जिसकी पीएच 7 से तो कम ही होनी चाहिए लेकिन 7 के करीब। तो 7 के करीब किसकी पीएच है, ए की, तो ये होगा वीक एसिड, जबकि बी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब अभी मैंने समझाया बेस। कौन सा वीक बेस होगा, जिसकी ज़्यादा पीएच वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी कम पीएच वो वीक बेस। लेकिन हाँ 7 से ज़्यादा भी होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा सी की है तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी स्ट्रॉन्गली अल्काइन, अल्कलाइन। और ई की पीएच 7 से ज़्यादा है मतलब बेस तो है, लेकिन 11 से कम है मतलब वीकली अल्कलाइन है, वीकली, वीकली बेस है। क्लियर, ओके। Equal length of magnesium ribbon are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid added to test tube A, while acetic acid, एसिडिक एसिड किस में होता है मालूम है आपको, विनेगर, ठीक है जी। जो हम ये जो खीरू बनाते हैं इडली डोसा हांडवा, उसके अंदर ये डालते हैं विनेगर। एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, इन वी टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगोरसली। फिजिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे सोडा आप लो, सोडा बराबर, उसको शेक करो, तो सोडा को जब शेक करते हैं तो मालूम है ये सोडा है, उसके अंदर बबल्स निकलते हैं, ऐसे बबल्स, ठीक है। और बबल्स के साथ ये सोडा पूरा बाहर आता है ना, हम जब उसको शेक करते हैं तो बबल के साथ ये पूरा जो सोडा बाहर आया एकदम प्रेशर के, उसको फिजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिंग, यानी पूरा ऐसे बाहर आना, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि विनेगर में ये फिजिंग ज़्यादा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। तो ये भी हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, वीडियो देखेंगे इसके लिए।
रिएक्शन देखना पड़ेगा। हाँ हियर देखो, ये पहला हम ग्लूकोज के साथ एसिडिक एसिड के साथ कर रहे हैं। ये हमने एसिडिक एसिड लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैग्नीशियम, देखो इसके हाथ में मैग्नीशियम का एक पीस है, देखो वो इसके अंदर डालेंगे। ये मैग्नीशियम का पीस हमने डाल दिया। देखो अभी डालने के बाद तुरंत फिजिंग चालू नहीं हुआ, तुरंत बबल स्टार्ट नहीं हुए, अभी हम वेट कर रहे हैं। देखो वो फ्लोट कर रहा है मैग्नीशियम, शेक करना पड़ता है थोड़ा। दिख रहा है आपको मैग्नीशियम? देखो यहाँ पर देखो ये रहा मैग्नीशियम। देखो कितना ही टाइम लगा रहा है। अब इतने टाइम के बाद ये देखो बबल्स हो, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। धीरे धीरे देखो यहाँ पर आपको लग रहा है सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो आपने देख लिया होगा एसिडिक एसिड में कितना टाइम लगा। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। चलो, ये तो हमने देख लिया, उसमें बहुत काफ़ी टाइम लग गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना टाइम लगाता है वो अब देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे हमने। ये तो मैंने बिगिनिंग से करना पड़ेगा ना मैं। चलो ये शुरुआत से। पहले एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेंगे। देखो ये देखो ये कितना फिजिंग हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हो रहा है। देखो कितने बबल फॉर्म होके बाहर आ रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये जो इसको फिजिंग कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये फिजिंग क्यों फास्ट होता है, इसका हमें आंसर देना है। सिंपल लॉजिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आए उतना वो एसिडिक और उतना ज़्यादा फिजिंग करेगा। जबकि एसिडिक एसिड वीक एसिड है, वो उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ फिजिंग कम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड एंड एसिडिक देन एसिडिक एसिड, देयरफॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टेस्ट ट्यूब ए विल बी मोर देन दैट ऑफ इन टेस्ट ट्यूब बी। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा, एसिडिक एसिड कम करेगा। Hence reaction will take place faster in test tube A than test tube B obviously. So fizzing will occur more vigorously in test tube A. Fresh milk has pH of 6. How do you think the pH will change as it turn into curd? Simple logic. ये fresh milk है हमारे पास। देखो फ्रेश मिल्क है ना, pH 6 मतलब लेस देन 7, उसको वो एसिडिक ही होता है। क्या होता है? एसिडिक, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा लैक्टिक, देखो जनरली मिल्क मतलब लैक्टोज होता है, ये एक शुगर है। लेकिन जैसे आप ज़्यादा एयर के एक्सपोजर में मिल्क रखते हो तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनना चालू होता है। क्या बनना चालू होता है? लैक्टिक एसिड। तो हम जो मिल्क पीते हैं उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बिल्कुल लैक्टिक एसिड नहीं होता है, बहुत कम प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन लैक्टोज ज़्यादा है। देखो लैक्टोज है ना, लैक्टोज ये शुगर है, शुगर हमेशा मीठा होता है। और लैक्टिक एसिड ये एसिड है, हमें मालूम है एसिड टेस्ट में खट्टा होता है। इसे लैक्टोज ज़्यादा होने की वजह से मिल्क में लैक्टिक एसिड कम होता है, इसमें दूध मीठा लगता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे अगर ज़्यादा एयर के एक्सपोजर में हम मिल्क रखें तो उसके अंदर लैक्टोज जो है वो कम होने लगता है और लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है, यानी धीरे धीरे उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। यानी समझ जाने का दूध अभी मिल्क अभी बिगड़ गया। क्यों मिल्क बिगड़ गया? क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। तो मुझे एक बात बताओ कि मिल्क है, उसकी pH 6 है, अब उसके अंदर एसिड बढ़ा, लैक्टिक एसिड बना ना, तो मुझे एक बात बताओ, एसिड बढ़ा तो उसकी pH 6 से कम होगी कि ज़्यादा? हमें मालूम है कि जब भी pH लेस देन 7 होता है तो उसको एसिड कहते हैं।
तो जितना ज़्यादा एसिड बनता है उसकी पीएच कम होने लगती है, और जितना पीएच ज़्यादा बनता है उसकी पीएच उतनी बढ़ने लगती है। सिंपल, यहाँ लैक्टिक एसिड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो उसकी पीएच कम होने लगेगी, 6 से डाउन होती जाएगी। दैट इज आंसर। When milk changes into curd, it produces lactic acid. Because of the presence of lactic acid in curd, the pH value decreases. A milkman adds very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the milk from 6 to slightly alkaline? Why does the milk take a long time to set a curd? देखो, इसका भी रीज़न मैंने आगे समझा दिया आपको। ये मिल्क जिसके अंदर होता है लैक्टोस, बताया था उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। एसिड कम होने की वजह से और लैक्टोस जो शुगर ज़्यादा होने की वजह से मिल्क मीठा लगता है, जिसकी पीएच 6 होती है। अब देखो एक सिंपल लॉजिक, जितना लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी एसिड बढ़ता है तो पीएच कम होने लगती है, तो जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ेगा पीएच कम होगी, दूध बिगड़ना चालू हो जाएगा। तो अगर हमें बिगड़ने से रोकना है तो उसकी पीएच जो कम हो रही है वो रोकना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सिंपल लॉजिक है, पीएच कम होने से रोकना है तो हमें उसकी पीएच थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी। अब पीएच बढ़ाना मतलब वो क्या बन जाता है, बेस। तो इसकी पीएच थोड़ी बढ़ाने के लिए उसके अंदर बेस हमें डालना पड़ेगा। इसलिए ये जो मिल्कमैन है वो क्या करता है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालता है। बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है ना, वो जो क्या है, बेस है। तो पीएच जो इसकी 6 है तो स्लाइटली पीएच बढ़ा देता है और 7 पॉइंट के आसपास कर देता है, 7 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो यह लैक्टिक एसिड इसके अंदर और भी ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। सपोज 7.1 पीएच बनी इसकी, बराबर है। तो लैक्टिक एसिड बहुत कम कर दिया हमने क्योंकि हमने बेस बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, एक सिंपल लॉजिक है, जब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तभी मिल्क बिगड़ेगा। अब इसको बिगड़ने के लैक्टिक एसिड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो पहले 7.1 से 7 आएगा, फिर 6.5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 से बिलो 5, 4, 3 ऐसे जाएगा, तब जाके मिल्क बिगड़ेगा। तो मतलब ये मिल्क बिगड़ने में टाइम लगाएगा। जबकि जिसमें हमने बेकिंग सोडा नहीं डाला हुआ है वो सीधी पीएच 6 से ही डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी, यानी ये मिल्क जल्दी बिगड़ जाएगा। अब आप सोचो कि सर बेकिंग सोडा वो डालेंगे तो ऐसा मिल्क पीने से हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है। बेकिंग सोडा है ना, खाने का सोडा जो हम खाने में यूज़ करते ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इससे दो चीज़, मिल्कमैन को भी फ़ायदा इसलिए होता है, बेकिंग सोडा डालने से मिल्क थिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेकिंग सोडा वाला मिल्क भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। चलो लेट अस रीड आंसर। When a small amount of baking soda is added to fresh milk, the pH of the milk increases. क्यों? बेकिंग सोडा बेस है और बेस बढ़ता है तो pH बढ़ती है। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, दिस प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम सोरिंग। सोरिंग का मतलब खट्टा होने से बचाता है, बिगड़ने से बचाता है। बी क्या था, वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड? मिल्क टर्न बेसिक बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा एंड लैक्टिक एसिड ऑफ मिल्क इज न्यूट्रलाइज। यानी बेकिंग सोडा डालने से, ठीक है, लैक्टिक एसिड बहुत कम हो जाता है, इसलिए मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगाता है, सो इट गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम सोरिंग। प्लास्टोपेरिक शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। देखो, अगर किसी ने फ्रैक्चर करवाया है तो आपने देखा होगा कि एक है ना क्लोथ आता है जिसके ऊपर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिप करते हैं, और सपोज ये आपका पैर है, यहाँ पर आपको फ्रैक्चर हुआ है, तो ये जो है ना, ये क्लोथ जिसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको वाटर में डिप करके यहाँ पर यही कपड़ा लगा देते हैं। ये क्लोथ वाटर में डिप करके लगा दिया। अब क्या होगा, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम, जो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है।
इसलिए जैसे ये क्लोथ है ना, वो तो इतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट ही होता है, लेकिन जैसे वाटर के कांटेक्ट में आता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो पूरा क्लोथ ज़बरदस्त हार्ड हो जाता है, और हम जिसको कहते हैं पीओपी। ठीक है, तो यही रीज़न और कुछ नहीं है। बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म जिप्सम एंड बिकम्स हार्ड, देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसलिए जब तक हम फ्रैक्चर के ऊपर एक क्लोथ नहीं लगाते हैं तब तक ये क्लोथ को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद ही हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर में तो वाटर होता है ना। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या, एसिड और बेस दोनों को इक्वल बनाना। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एनी वन एग्जाम्पल यू कैन राइट, इट इज इजीएस्ट वन टू रिमेंबर एंड दिस इज ऑल्सो इजीएस्ट क्वेश्चन। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। वॉशिंग सोडा की यूजेस, क्लींजिंग एजेंट, मैंने अभी बताया वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा होता है, तो कपड़ों को क्लीन करने के में यूज़ होता है, इसलिए उसको क्लींजिंग एजेंट कहते हैं। यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो अगर आपने देखा हो कि जब ये सोप है ना, सोप को जब कपड़े के ऊपर घिसते हैं ना तो जल्दी जाग नहीं बनता है, ठीक है, वो टाइम लेता है जाग बनाने में, और आपके हाथ क्लीन करने में भी टाइम लगाता है। लेकिन जब भी आप सोप से हाथ धोगे ना तो तुरंत जाग नहीं बनेगा, थोड़ी देर के बाद जाग बनेगा। जब जाग बनता है उसका मतलब आपके हाथ का डर्ट निकल रहा है, आपका हैंड क्लीन हो रहा है। क्लोथ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि क्लोथ क्या करता है, पहले हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है सोप, और वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में बहुत टाइम लगाता है। तो जब तक हार्ड वाटर सॉफ्ट नहीं बनेगा तब तक जाग नहीं आएगा। समझ जाने का, सोप लगाने के बाद जब जाग आना चालू हो गया मतलब हार्ड वाटर सॉफ्ट हो गया। जबकि वॉशिंग सोडा में ऐसा नहीं है, वो तुरंत क्या करता है मालूम है, ये क्लोथ को जिस वाटर में डाला है ना, जैसे वॉशिंग सोडा डाला तुरंत ही हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देगा, मतलब तुरंत ही आपको क्लोथ में से जाग आना चालू हो जाएंगे। देखना आप ट्राई करना घर पे, जैसे पानी के अंदर वॉशिंग सोडा डाल के थोड़ा आप सेक करोगे ना तुरंत ही जाग बन जाएगा, क्योंकि तुरंत ही हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है, तुरंत ही कपड़े पे से डर्ट को निकाल देता है। यूजिंग ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी ग्लास सोप और पेपर बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा है तो ऑब्वियसली एज अ बेकिंग पाउडर यूज़ होगा कोई भी चीज़ खाने की चीज़ बनाने में। यूज़ एज ए एंटासिड्स, डिसइंफेक्टेंट, यानी एसिडिटी के रिलीफ में यूज़ होता है। जो आप इनो पीते हो ना, इनो के अंदर बेकिंग सोडा ही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। ये एंटासिड का मतलब मैंने समझाया था, एंट का मतलब उसको कम करना, और एसिड का मतलब एसिडिटी, जो एसिडिटी को कम करता है उसको एंटासिड्स कहते हैं। यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, ये जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है रेड कलर का बॉटल, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब जैसा होता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और यहाँ पर जो होता है सोडा यानी बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा, और ये एक नॉब होता है। अब ये इसको सिलेंडर को ऑन करने के आपको नॉब को दबाना पड़ेगा। ये नॉब को जैसे आप प्रेस करोगे, ये एसिड है ना, जो टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी और एसिड सोडा के साथ मिक्स हो जाएगा। एसिड सोडा के साथ मिक्स होने के बाद जो चीज़ यहाँ से निकलती है वो तुरंत फायर को एक्सटिंग्यूश कर देती है। तो ये जो एक्सटिंग्यूशर बना वो एसिड और बेकिंग सोडा यानी सोडा से बना, इसलिए उसको कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, और ये बनाने में हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया। सो दिस इज़ वन यूज ऑफ इट। सो हियर ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 ओवर। लेट्स एंड दिस लेक्चर। बाय, हैव अ सेफ डे।